सर आप एडिट करेंगे बस को आपका माइक ऑन नहीं है तो प्रीवियस क्लास में जो है हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन और भी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे सॉल्व करेंगे जिससे कि जो है आपको ये प्रॉपर्टी इजीली आपको जो है समझ में आ जाए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। log 1 plus x upon 1 plus x square that x is equals to tan theta dx upon d theta is equals to sec square theta when dx is equals to sec square theta d theta log x के प्लेस पे देखिए tan theta रख देते हैं हम लोग और dx के प्लेस पे sec square theta d theta डिवाइड बाय 1 plus tan square theta log 1 plus tan theta limit is 0 to 1 तो यहाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग if theta is equals to 0 x is equals to tan 0 that is 0 if x is equals to 0 then theta is equals to 0 if x is equals to 1 then tan theta is equals to 1 theta is equals to tan inverse 1 that is pi by 4
sec square theta into sec square theta d theta. Let pi is equals to 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग. Then y using property 0 to a fx dx is equals to f a minus x 0 to a dx. Then 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus theta d theta. अब ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था, सिमिलर सेम टू सेम यही क्वेश्चन था हमारा. तो आप इस क्वेश्चन को आगे जो है खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सेम टू सेम देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में. तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा. तो बस इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ये था. एक तो x = tan थीटा लेना था. मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जो है हम लोग इंटीग्रेट को इजीली कर लेते हैं, यानी कि उसे इजी करके उसके बाद देखिए फिर हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर देंगे. तो ये क्वेश्चन जैसे पिछली क्लास में सीखा था उसकी तरह हो जाएगा सेम टू सेम. आगे आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे. Next question is evaluate 0 to pi
e to the power cos x divided by e to the power cos x plus e to the power minus cos x. Let I is equals to 0 to pi e to the power cos x and e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx. Using property 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx. Cos 180 minus x means minus cos x, और ये आ जाएगा 180 minus x मतलब minus cos x means e to the power cos x dx. इक्वेशन सेकंड ऐड कर देते हैं दोनों को. At first plus second 2i is equals to 0 to pi. देखिए डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है. इट मींस e to the power cos x e to the power minus cos x. न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है. This pi minus 0. Answer is pi. I is equals to pi by 2.
Next question is, zero to pi by 2 sin x minus cos x let I is equals to 0 to pi by 2 sin x minus cos x 1 plus sin x into cos x dx is equation 1. Using property zero to a fx dx is 0 to a f a minus x dx. I is equals to 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x is equals to 0 to pi by 2 cos x minus sin x divided by cos x sin x dx. Equation second. Adding equation first and second, 2I is equals to 0 to pi by 2 sin x minus cos x minus sin x. But denominator is same in both equations. One plus sin x into cos x. Answer is 0. 2I is 0, that is I is equals to 0.
next example is 0 to 1 x 1 minus x whole power n dx. Let I is equals to 0 to 1 x 1 minus x whole power n. Then using property, जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, x के प्लेस पर 1 minus x means 1 minus x into x to the power n dx. 0 to 1 आप चाहे तो ये क्योंकि डायरेक्ट देखिए इंटीग्रेट यही हो जाएगा 0 to 1 x to the power n plus 1 dx. इंटीग्रेट कर देते हैं इसको सेपरेटली 0 to 1 x to the power n dx x to the power n plus 1 dx. Limit is 0 to 1 x to the power n plus 1 divided by n plus 1 minus x to the power n plus 2 divided by n plus 2. Limit is 0 to 1. तो आप एक बार x के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं 1 upon n plus 1 1 upon n plus 2 एंड सेकेंड टाइम में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे आप 0 minus 0. Answer is 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2. देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेट डायरेक्ट हो गया था तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. ऐसा भी कहीं कहीं हो जाता है कि जब इंटीग्रेट हो सकता है तो हम उसे इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं. Next is 0 to 1 log 1 upon x minus 1 dx. Zero to 1 log 1 minus x dx. Let I is equals to 0 to 1 log 1 minus x by x dx.
एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट log 1 अपॉन x है, तो आप इसे लिख सकते हैं log x टू द पावर -1 यानी कि माइनस log x। तो अभी हमें इसकी इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी अभी हमको। Then using property 0 to a fx dx is 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। देखिए x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमको 1 minus x, 0 to 1 log 1 minus 1 plus x। x के प्लेस पे आपको 1 minus x पुट करना है। देखिए a देखिए बने यहाँ पर 1 minus x dx log x upon 1 minus x dx। सेकेंड ऐड 1 plus 2, 1 plus 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, मीन्स 2i is equals to 0 to 1 log 1 minus x by x plus log x upon 1 minus x dx। 0 to 1 log 1 minus x by x। देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तो आगे माइनस आ जाएगा। इट मींस log 1 minus x by x dx कैंसिल। 2i is equals to 0, I is equals to 0। Next question is evaluate sin square x divided by sin x plus cos x dx। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से केयरफुली देखेंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
0 to pi by 2 sin square x sin x plus cos x dx is equation 1. Using property 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x. यहाँ हमने यूज की है प्रॉपर्टी जो अभी मतलब कंटिन्यू हम लोग उसी एक ही प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं is equals to 0 to pi by 2 cos square x cos x plus sin x ds is equation second. Add 1 plus 2. Denominator is same. 2y is 0 to pi by 2. हमने देखिए न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में सेम है. We know that sin square x plus cos square x is 1. It means 0 to pi by 2 1 upon sin x plus cos x dx. अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे. इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सिंपलीफाई कर चुके हैं. sin x और cos x अगर किसी कंडीशन में हो तो sin x और cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 0 to pi by 2 1 upon sin x के प्लेस पर हम पुट करेंगे 2 tan x by 2 डिवाइड बाय 1 plus tan square x by 2 और cos x के प्लेस पर 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 dx. 1 plus tan square x by 2 is LCM 2 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 dx. Sec square x by 2 2 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 dx 0 to pi by 2. लेट कर लेते हैं यहाँ पर tan x by 2 is t sec square x by 2 into 1 by 2 dx is equals to dt. Sec square x by 2 dx is equals to 2 dt. It means 2 dt divided by minus t square plus 2t plus 1. 2y is equals to 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देखिए I is equals to dt minus is common t square minus 2t minus 1 minus 1. अब इसको जो है यहाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग. देखिए वहन यहाँ अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो t 0 आ जाएगा और अगर x के प्लेस पे pi by 2 पुट कर देते हैं तो ये pi by 4 हो जाएगा यानी कि इट मींस 1 हो जाएगा. समझ में आया आपको लोगों को कि अगर x के प्लेस पर 0 पुट किया तो t जो है वो 0 हो जाएगा और एक बार x के प्लेस पर pi by 2 पुट करेंगे तो tan pi by 4 यानी कि 1 हो जाएगा. अब आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है. t का कोएफिशिएंट 2 है उसका हाफ करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 0 to 1 dt t minus 1 whole square minus root 2 whole square.
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2 स्क्वायर एंड t माइनस 1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर देंगे इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2a log a plus x upon a minus x. Limit is 0 to 1. इसके बाद आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने इसको पहले उसी तरीके से किया, बट यहाँ पे 1/sin x plus cos x आ गया था। तो जब मैंने बताया था 1/a sin x plus b cos x, तो उसे इंटीग्रेट करने का तरीका होता है sin x और cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर t ऐड करेंगे हम लोग, फिर लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने के बाद देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ हमने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। अब आपको यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो अब यहाँ पे एक बार t के प्लेस में 1 पुट करेंगे, 1/2√2 log √2 plus 1 minus 1 √2 minus 1 plus 1 माइनस एक बार 0 पुट करेंगे log √2 minus 1 √2 plus 1। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 minus log √2 minus 1 √2 plus 1। अब अगर आप चाहें तो इसे यही आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे तो इस वाले पोर्शन को आप रेशनलाइज कर सकते हैं। 1/2√2 minus log √2 minus 1 by √2 plus 1। चाहे तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहेंगे तो ये भी आंसर हमारा ओके है। ये क्वेश्चन